Hello everyone. Today we are going to learn next topics of the surfacing in SolidWorks. That is a swept surface, lofted surface, boundary surface, all these. So let's start from swept surface. So it's similar to we already discussed it in a feature, that is a swept boss, and in a surfacing it is a swept surface, right? So how it work? So first of all we need to define a path, yeah, guide curve. So here I'm just going to create any profile here, sorry, guide curve here. This is our first guide curve, and here the second one. Okay, exit. Now just create any profile here on this plane. Start and so third point, right? Now this is our profile and these two are the guide. So now go with the surface, and in a swept surface here we have it two type, that is a sketch profile, second one is a circular profile. So first is the sketch profile. You all must know that what is the meaning of the sketch profile. Means if you have a profile, that one you want to add along a path, then you can use this one, sketch profile. And circular profile, this is only for a circular. Just here, if we go with the circular profile, you just need to create any guide, right? See, there is just we need to add a guide, and by default it takes a circular profile. Means we can put a diameter of 10, 20, 30, whatever you want, and you can add any circular profile along a path. Means in a circular profile you just need to create any path, any guide along which you want to add a circular object, right? In a sketch profile you need to have create a profile and as well as guide and path, right? So here first the sketch profile, and here this is the option for a sketch profile. First one, select, this is our sketch profile, and next one is a for a path, select straight line as a path. And now when I'm going to select this path, now new dialog box is open here. It's asking for what type of path is your, it's a closed path, open path. So now this line is open, so we can select it, this is open, and okay. You can see this arc shape now added with this line, along this line. Now we have another path here, this one. If you want to use this one also, then go with the guide curve option. Here we have a option for a guide curve. Just go into guide curve and select this curve as a guide curve, right? This one, right click, selection manager, select it like this. Now it's asking for the same option. ये हमको क्यों डिफाइन करना पड़ता है? फॉर कि जो हमारा पाथ है इट्स अ क्लोज लूप और ओपन लूप. अभी जो हमारा पाथ है इट्स अ ओपन, स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे इट्स ओपन प्रोफाइल. जस्ट you can choose second option
for a open loop and octave. Now you can see our arc shape profile now added along with this path, guide curve, as well as this line. Along with this line, you can see it from the top. See here it's along a line, straight line, and here it will it is added along this spline path, right? And okay, this is the swept surface. It is similar to that we discussed in a feature swept bows, but now in a swept surface the component in this form of सरफेस की फॉर्म में रहेगा, एंड इन फीचर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इट्स अ कम्प्लीटली सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस. And here we have another, that is a circular profile. For this option you just need to create a path, right? Suppose करो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट इट, यस. कंसीडर करते हैं कि इन a circular profile this is our path, just select it, so open, select it, okay. Now you can see the diameter of 10 mm. Now I'm going to increase this one by 20, so now 30 mm. Now you can see the 30 mm circular shape now added along with this straight line, this path, right? If now I'm going to change this path, clear selection, now I'm going to add along this. Now you can see the circular profile now added along this arc shape. In a circular profile you just need to add a path, right? जिसके along आपको ऐड करना है, right? This is the swept surface, okay. Now जो next टाइप है हमारे पास वो है loft surface. In a loft surface we can add material between a multiple profile या multiple shape profile, right? Suppose करते हैं फर्स्ट प्रोफाइल जो हम क्रिएट करते हैं on this plane, on a top plane, and it's like a okay, exit it. एंड जो नेक्स्ट रहेगा, अभी हम सेकंड के लिए प्लेन क्रिएट करेंगे. फर्स्ट फीचर में जस्ट गो विद द रेफरेंस ज्योमेट्री एंड क्रिएट अ प्लेन. जो हम सेकंड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो ऑन अनदर प्लेन ऑन सम डिस्टेंस को 50, और इसको अभी ले लेता हूँ 80 के आसपास लेके चलता हूँ. एंड सेकंड प्रोफाइल जस्ट क्रिएट ऑन दिस प्लेन. And here first, second, third, like this. And for a third again हम क्या करेंगे, प्लेन क्रिएट कर लेते हैं फॉर अ थर्ड ज्योमेट्री के लिए. ऑफसेट फ्रॉम दिस, और मैं थर्ड प्लेन के ऊपर अगेन ज्योमेट्री क्रिएट कर देता हूँ. और यहाँ पे फिर अगेन हम एग्जिट किया इसको. अभी हमारे पास 3 प्रोफाइल हैं. अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तीनों प्रोफाइल को किसके अलोंग ऐड करना है. सपोज करो हम सरफेस में जाते हैं एंड विद द लॉफ्टेड सरफेस.
here we have a option for a profile. Just select a profile, first profile, and now the second one. ओके और अभी हम जो क्रिएट सेलेक्ट करने वाले हैं दैट्स द थर्ड वन. ओके, you can see the surface added along with these three profile, first, second and third profile. Okay, if you want to add a path या guide curve along with this profile you can add. So how? Just delete it. Okay, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ऐड गाइड. ठीक है ना. सो जस्ट गो टू स्केच एंड हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 3D sketch. With the help of 3D sketch we can add path also here. Suppose I want to add by using this spline option, first, second, third, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब मैं 5 पॉइंट से स्प्लाइन बनाया है यहाँ पे. ये मेरा फर्स्ट पाथ है और सिमिलरली अभी मैं सेकंड बनाने जाता हूँ. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ओके, अभी मैंने 2 पाथ बनाया है यहाँ पे. फर्स्ट गाइड ये बनाया है, सेकंड वाला ये मैंने क्रिएट किया. अभी मैं इन दोनों के अलावा इस प्रोफाइल को ऐड करना चाहता हूँ. सो जस्ट गो टू सरफेसेस एंड यूजिंग अ लोकेटेड सरफेस हियर एंड फर्स्ट सेलेक्ट द प्रोफाइल्स. दिस इज आवर फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल एंड दिस इज द थर्ड प्रोफाइल. राइट, अभी हमको क्या सिलेक्ट करना है? गाइड सिलेक्ट करना है. जस्ट गो हियर इन अ गाइड करो. तो सिलेक्ट द फर्स्ट गाइड करो और दिस इज द फर्स्ट गाइड करो. दिस वन, दिस इज ओपन, सिलेक्ट ओपन एंड ओके इट. नाउ सिलेक्ट second guide. This is our second one. Select it. So open also. Get. And okay. Now you can see all these three profile. First क्या था हमारा? ये रेक्टेंगुलर शेप था, देन सर्कुलर था, उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर था. जो यहाँ से ऐड हुआ है अलोंग दिस पाथ वो ऐड हो चुका है. एंड फ्रॉम दिस साइड जो ऐड हुआ है अलोंग दिस पाथ वो ऐड हो चुका है. राइट, दिस इज अ लोफ्टेड सरफेस. मीन्स वी कैन ऐड अ मल्टीपल शेप प्रोफाइल. We can add a material between a multiple shape profile with the help of guides and without guides. Right, this is the lofted surface. And next is the boundary surface. The lofted and boundary surface are similar. Okay, all these are similar, but here mostly we can use to add material complicated shape on any profiles. And here this is the same work, but here we can add a simple shape profile. जो भी हमारी प्रोफाइल सिंपल रहती है, नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें अगर हमको ऐड करना है तो हम बाउंड्री सरफेस का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव ए प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड शेप विद द हेल्प ऑफ गाइड्स देन यू कैन यूज अ लोकेटेड सरफेस, बट इट्स नॉट मोर डिफिकल्ट. नाउ जस्ट डिलीट इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज boundary surface on these profiles. Select boundary surface and here we have a option for a direction 1 and direction 2, but in a lofted surface we have a option for a profile and a guide. So
In a boundary, the profile replaced with the direction 1 and guide replaced with the direction 2. So here just add profiles in a direction 1, first profile, second, this is the third one. Now select guide in the direction 2, first open, okay, and now second one, this is the second one, select it, open and okay. Now you can see all these three profile added along with this guide and with this guide. Okay, so this lofted surface and boundary surface are similar, there is no difference. Okay, जो काम हम लॉफ्टेड से कर सकते हैं बाउंड्री से भी कर सकते हैं, बट जो मेन डिफरेंस यही आता है कि अगर शेप यू हैव अ मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप and more complicated guide, then go with the lofted. If you have a simple shape, simple profile, line curve है, line guide curve है, then you can use a boundary surface. Okay, so all these are swept surface, lofted surface and boundary surface is completed here. Now next is the filled surface. You already completed this one. In last video we had discussed this option, filled surface and planar surface, offset surface. So next is let's delete this one. And next जो हम देखने वाले थे थिकन ऑप्शन हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे, थिकन ऑप्शन. सो जो थिकन ऑप्शन का यूज है वो क्या, थिकनेस को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर व्हाट पर्पज, टू ऐड अ थिकनेस. सपोज करो अभी मैं लॉफ्टेड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लॉफ्टेड का यूज़ किया, सिंपली फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड एंड थर्ड, ओके कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी इट्स अ 0 mm थिकनेस, राइट. बट इफ यू वांट टू ऐड अ थिकनेस टू दिस प्रोफाइल, जस्ट गो विद अ थिकन, click a thicken and here just select a face, this one, and define the value of the thickness. Just I want to 2 mm. Okay, now you can see here 2 mm thickness will be added, and there is an option to maintain a thickness on a one side, means inside वाली side में thickness add हुआ है. If we keep second one, both side में add हो जाएगा thickness, right. If you select this one, only upper side में जाएगा, ऐसे जो भी थिकनेस है आउटर साइड में है. अगर हम सेकंड वाले को पिक करेंगे तो इन साइड में भी आ जाएगा, बोथ साइड में 2 + 2 टोटल थिकनेस 4 mm हो जाएगा. और यहाँ पे जाएंगे तो ओनली इन साइड वाली साइड में थिकनेस को ऐड करेगा. ओके, ओके कर देते हैं इसको भी. और यू कैन सी जो अभी ऑब्जेक्ट है उसको कितना, क्या सॉरी, अभी 2 mm का थिकनेस उसको ऐड हो चुका है, राइट. By using a thicken option you can add a thickness to component. जब आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन आप उसको थिकनेस ऐड कर सकते हो by using a thicken option. ओके, जस्ट डिलीट इट. इसको कर देते हैं डिलीट, राइट क्लिक डिलीट. ओके, अभी जो हमारे पास है जो नेक्स्ट टूल है वो हम देखने वाले हैं, वो कौन सा रहेगा. फर्स्ट जो डिलीट ऑल दिस स्केच, यस टू ऑल. ओके, नेक्स्ट है थिकन कट एंड कट विद द सरफेस. ओके, सो फॉर दिस फीचर we have to add solid body here. With the help of feature we can add any solid object here. Just extrude it like this and okay.
अभी मैंने क्या किया, एक्सट्रूड का यूज़ करके एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया ऐसा कुछ, राइट। और अभी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कोई सरफेस, जस्ट गो टू सरफेस इन एक्सट्रूड, जस्ट सेलेक्ट एनी प्लेन, नाउ select a profile like this, okay, exit from the sketch, and by using a mid plane you can add any surface here, okay. Now this is our object. Now this is the thicken cut. What is it? Just go to thicken cut, and here it's asking for a surface to thicken, right? This is our surface, consider this is our surface, and add 5 mm thickness. All these are three options are same that we already discussed in a thicken. On one side मीन्स टॉप साइड में जा रहा है, अभी इसके थ्रू बोथ साइड में जाएगा, एंड इससे ओनली बॉटम में जाएगा। सपोज करो मैं मिडिल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोथ साइड में ऐड करता है, मीन्स टोटल अभी वो 10 mm है, राइट। ओके करता हूँ तो क्या करेगा, देखो वो थिकन कट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सरफेस आप किसी भी सॉलिड बॉडी को कट कर सकते हो, या उसमें कोई भी गैप आपको देना से इस शेप में आप कट कर सकते हो उसको इस फॉर्म में, राइट। देन अभी जैसे वो कट हो रहा है बॉडी, मैंने उसको ओके किया, देन नाउ इट्स आस्किंग फॉर अ बॉडी टू कीप सी देयर आर टू रिजल्ट, एक नीचे वाला बॉडी रहेगा, ऊपर वाला बॉडी रहेगा। वो बोलता है कि दोनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑल रखते हैं तो दोनों बॉडी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। अगर सिलेक्टेड की बात आती है तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करो या फिर इसको, किसी एक को। अभी मैं क्या करता हूँ, ऑल बॉडीज रखता हूँ, दोनों बॉडी मेरे को रखना है, एंड ओके। नाउ यू कैन सी मीन्स थिकन कट, उस सरफेस की हेल्प से वो कट करता है बॉडी को, बस दूसरा कुछ नहीं ऑप्शन इसका, ऐसे, राइट। अगर मैं वहाँ पे जाके अभी ओके करता हूँ, अगर उसमें बोलता हूँ सिलेक्टेड बॉडी, तो पूछेगा कौन सा बॉडी आपको रखने का, फर्स्ट बॉडी, नीचे वाला बॉडी रखना है, ओके, तो ऊपर वाला निकल जाएगा, राइट। आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हो, राइट। जस्ट कंट्रोल जेड अंडू किया मैंने उसको भी। नेक्स्ट है कट विद द सरफेस, ये भी सेम ऑप्शन है, आप पहले वाले से भी इसको यूज कर सकते हो, इसका भी, और इस कमांड से यूज कर सकते हो। क्या रहेगा, सरफेस की हेल्प से सॉलिड बॉडी को कट करना है, जस्ट सिलेक्ट करने का, सरफेस में जाएंगे, कट विद द सरफेस, सिलेक्ट करेंगे सरफेस को, एंड ओके। कट किया ना, सॉरी कट किया, डिलीट इट, अगेन जाता हूँ, कट विद द सरफेस, सिलेक्ट, एरो का साइड देखा करो, नीचे की तरफ है तो नीचे वाला जाएगा, इस एरो की साइड को चेंज करेंगे, ऊपर की तरफ किया, अभी क्या करेगा, ऊपर वाले को निकाल देगा, और जो भी सरफेस का, जो भी हमने यहाँ पे एक सरफेस ऐड किया, उसका जो भी शेप रहेगा उसी शेप में वो उसको कट करेगा, राइट, लाइक दिस। This is the thicken cut with the surface and a thickness option. And here we have another option, that is a replace face. This one is also similar to all these thicken cut and cut with the surface. Suppose now this is a replace face. This option we can use if you have any body that one you want to replace along with reference to other surface. If you have a object which one you want to replace with the shape of any surface, for example, and here it's asking for a target face for a replacement, right, means this is our flat surface, I want to replace this face। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फेस को रिप्लेस करना चाहता हूँ along with this face। मैंने क्या बोला, इस फेस को रिप्लेस करना है, जिसको टारगेट में रखा है मैंने, इस सरफेस के साथ रिप्लेस करना है, ओके किया, यू कैन सी मीन्स वो फेस है जो क्या किया उसने, तो बहुत तब डिलीट हो गया, या फिर आप यू कैन से वो रिमूव हो जाता है, वो क्या कर लेता है, उस फेस की फॉर्म में आ जाता है जो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल अब मैं अंडू करता हूँ उसको,
अभी मैं क्या करता हूँ, अगेन वन मोर सरफेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इन द शेप ऑफ आर्क लाइक दिस. जस्ट गो टू हियर, एग्जिट एग्जिट. अभी मैं इसको भी एक्सट्रूड कर देता हूँ, जस्ट एक्सट्रूड इट प्लेन लाइक दिस. Means with the help of replace surface you can extend, otherwise you can reduce the surface. This is a replace face. Now this is the face of replacement, means target face, and ये जिसके साथ हमको रिप्लेस करना वो फेस है. अभी क्या करेगा वो, उसको एक्सटेंड करके उस सरफेस के अलोंग ऐड कर देगा. मीन्स बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं लाइक दिस. मीन्स वो मटेरियल को ऐड भी करेगा रिप्लेस करने के लिए विद द रेफरेंस अदर थर्ड सरफेस, और वो उसको क्या करेगा, सरफेस जो सॉलिड बॉडी है उसको रिड्यूस भी करेगा टू गेनिंग अ शेप ऑफ अ रिप्लेसमेंट फेस, राइट. Just delete all these three options. Yes, to all. And here have a option for extended surface. This option we can use for to extend the surface only like this. Suppose we have this surface body here. Now just select extend surface, and here select edge face, select it. वो क्या करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा. कितना आपको एक्सटेंड करना है आप उसको कर सकते हो, राइट. देयर आर एक्सटेंशन टाइप सेम एज अ सरफेस, मीन जो उसका शेप का प्रोफाइल है सरफेस का उसके अलावा उसने इसको ऐड किया है. इफ जस्ट अगेन डिलीट दिस वन, इसको मैं डिलीट करता हूँ. अभी क्या उसी शेप को मेंटेन किया जा रहा है. आगे देखो सर्कुलर शेप को मेंटेन कर रहा है. अगर मैं पे लीनियर रखता हूँ तो लीनियरली ऐड करेगा, रहेगा टेंजेंट बट लीनियर शेप में आएगा, सेम और लीनियर, राइट. ऐसे कर सकते हो. ओके, जस्ट ऐड 60. Okay, it's the end condition. This is the option for end up to point. Suppose up to this point, up to point बोला है तो up to this point करना है, ऐसे करेगा, उसका रेफरेंस लेगा ऐसे. Up to if you have another surface here, then you can use this option. You already know this option in extrude surface, revolve surface. We already discussed, right? This is extend surface. Okay, there is a one more option, that is a ruled surface. This is a ruled surface. In ruled surface we will adding a material with the help of number of tools. Just before going to start, create any profile here. Suppose we have a profile on this plane, on top plane. Consider this profile like this. And extrude it. In a rolled surface we have a option to add a material. How type करेंगे, tangent to surface like this. If you want to add along this, you can say tangent surface. And if you have suppose करो मैं कुछ दूसरा बॉडी क्रिएट करता हूँ. यहाँ पे प्लेन में जाता हूँ, सॉरी
प्लेन क्रिएट करेंगे। ओके, विद द रेफरेंस ऑफ दिस, यहाँ पे हम एक आर्क शेप बना देते हैं। एग्जिट, ओके, जस्ट एड बाय यूजिंग अ लॉफ्ट, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल। ओके, कुछ ऐसा मैंने क्रिएट किया। अभी जाएंगे रूट सरफेस में। फर्स्ट टेंजेंट टू सरफेस, जस्ट सेलेक्ट दिस एज। टेंजेंट बोला है ना, कितना सपोज करो 100। अभी देखो उस सरफेस के वो टेंजेंशियली ऐड कर रहा है, राइट, उसको वैसे मेंटेन कर रहा है, उसकी शेप को देखो वैसे मेंटेन कर रहा है। अगर बोलता हूँ नॉर्मल टू सरफेस, वो क्या करेगा, उसके नॉर्मल ऐड करेगा, उसके परपेंडिकुलर। डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, अप साइड में, डाउनवर्ड साइड में से। अगर मैं इस प्रोफाइल को भी ले लेता हूँ इधर से, ये भी हमारा स्केच है, ये भी, तो कुछ ऐसे ऐड करेगा। रिवर्स किया तो अंदर की तरफ आएगा तो मर्ज हो जाएगा, तो डिस्टेंस को कम कर देगा 20, लाइक दिस, ऐसे, राइट। एंड अनदर ऑप्शन है टेपर टू वेक्टर, मीन्स बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। मीन्स क्या बोला, टेपर टू वेक्टर, मीन्स अपने को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स सपोज वी हैव अनदर थर्ड रेफरेंस हियर, जस्ट क्रिएट एनी थर्ड रेफरेंस, this is our vector, exit। now go to surface, select a root surface here, first, second, third, and up to 100, taper to vector, select this one as a taper to vector। now you can see the material added along this vector, surface added along this vector, right। this is a taper to vector, means जो हमारा surface ऐड होगा वो along रेफरेंस ऐड हो जाएगा, जो हम वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर टू वेक्टर मीन्स इसके परपेंडिकुलर जाएगा अभी। now you can see रेफरेंस, सो उसने क्या किया, उसके परपेंडिकुलर को ऐड किया है अभी, राइट। ओके, नाउ वी हैव ऑप्शन फॉर अ sweep, and here you can see we can add a material in a sweep, we can add a material with the help of coordinate, otherwise along a guide। guide means अभी इस वेक्टर के along मटेरियल ऐड होगा यहाँ पे, जो हमने डिफाइन किया है। if you have a coordinate input, just go with the coordinate input and you need to define a value of x, y, z। suppose को x में लेता हूँ 50, this is the x direction, okay, x में लेता हूँ only 10, y आपको देखना पड़ेगा y डायरेक्शन कौन सा है, राइट। y में लेता हूँ मैं 60, बट अभी रिवर्स जा रहा है वो, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ -60, लाइक दिस। और z में कितना चाहिए, z में डाल देता हूँ मैं उसको, z डायरेक्शन कौन सा रहेगा, देखो नीचे की तरफ वाला, ये डाउनवर्ड जाएगा। अभी आप देख सकते हो कैसे जा रहा है। अभी मैं जेड में डाल देता हूँ उसको 20, तो नीचे की तरफ आएगा। मीन्स आप उसको ऐसे अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ऐसे 10 गया है, ऐसे 60 गया है, और डाउनवर्ड साइड में वो कितना 20 गया। तो आप कुछ ऐसे भी मटेरियल ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वीप। ओके, ओके, अभी ऑलमोस्ट आपका सरफेसिंग कवर हो चुका है इसमें। अभी जो भी टॉपिक्स इसमें बचते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वर्क बेंच, वो हम इसमें स्टार्ट करेंगे।
और इसमें जो भी टॉपिक्स बचते हैं एक बार मैं चेक करूँगा और उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊँगा। ऑलमोस्ट इसमें से आपका 90 to 90% आपका कवर हो चुका है। ओके, अब जो लास्ट वर्क में जो हमारा बचता है दैट्स ड्राफ्टिंग हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ उसको पूछिएगा, ठीक है ना। देन की प्रैक्टिस। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।